Today I will be introducing to you Mr. Tarun Chawla. Mr. Tarun Chawla is an alumni of our university and was a student of our university. He joined SMVU in 2005 and he finished or completed his graduation from Electronics and Communication Engineering. And Computer no, you were science. in computer science. You were in computer science and engineering, 2005, 2009 batch, right? Right. And if I remember it rightly, you also took CAT examination at some point of the time and scored somewhere around 99 percentile, More than that, yeah. more than that. And this is the best thing which I will like to tell to my spectators that he could have chosen to go for an MBA after BTech, which is a very conventional thing which is happening. And I guess so he could have been the CEO or vice president of some company at this point of the time. But he chose his passion over anything else. And he took a very unconventional, I will call it, profession by choosing to go for photography. So, Tarun, सबसे पहले and first question, what made you go for photography after engineering rather than going for a conventional thing? Okay. So I did a 2-year job in an IT company. I'm not Okay, sure most people know that. तो okay, जब लोग फ्लैश की गेम खेल रहे होते थे, that time we were doing iPhone apps in India. This is okay. 2010 to 11. And see, अगर मैं CEO भी होता तो मेरे पे बोर्ड मेंबर होता कंपनी में. But Mhm. right now I'm the owner of the company. So Yeah, right now we are that's running the good. amazing thing. Technically we have 3 different companies अभी. एक जो वेडिंग Mhm. फोटोग्राफी करती है, एक Ah, कॉर्पोरेट और कमर्शियल वर्क करती है, एंड एक जो okay, वेबसाइट्स करती है. okay. And turnover is somewhere on 3 CR right now for the company. Wow. हाँ, Is there an opening for me as well? बताना कभी. तो बहुत जल्दी समझ आ गया था कि जॉब करके पैसा नहीं बन सकता एंड आई कांट रिटायर अर्ली. मतलब आई सीन अ पेरेंट, आई सीन लॉट ऑफ फैमिलीज जहाँ लोग 60 साल तक जॉब करते हैं, फिर रिटायर होने की वेट करते हैं, देन दे थिंक कि अब कुछ करेंगे लाइफ में रिटायर होने के बाद. तो देयर इज कम्युनिटी कॉल्ड फायर. इट्स कॉल्ड Okay. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली. तो एक ग्लोबल कम्युनिटी है जहाँ पे लोग प्लान्स बनाते हैं 40 की एज में रिटायर होने का, कि Okay. कैसे अपनी अर्निंग से या अपने इनकम से, इंटरेस्ट से या कोई और तरीके से खुद सस्टेन कर पाए पूरी लाइफ में सिर्फ 10 साल काम करने के बाद. दैट वाज माय मेन एम. आई डोंट वांट टू Okay. वर्क द एंटायर लाइफ. आई वांट टू क्रिएट अ लाइक अ कंपनी, अ प्रोसेस जहाँ से एंजॉय भी कर सकूँ एंड काम भी कर सकूँ. हाँ, that's an amazing and in fact मेरे ख्याल से काफी लोग आजकल जो है इस तरीके से सोचते हैं that they will go for like some kind of investments या कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाता है तो कोई किसी तरीके का जो है खुद की कंपनी खोल लेता है और उसके बाद दे वर्क फॉर से 10, 15, 20 years and they retire in early 40s, sometimes late 40s or early 50s और उसके बाद फिर they roam around the world, they choose even more but you have chosen your passion as your work and this is the best thing because मुझे याद है कि 2007 when I joined university you were in third year and you were the person who will always hold a camera with you and you know मेरे ख्याल से जो बेस्ट पिक्चर्स आज भी एसएम वीडियो पे खींचे गए हैं वो कॉपीराइट तरुण चावला ही आता है उसमें और बहुत बार हम प्रेजेंटेशंस में भी जो है उन फोटोज को यूज करते हैं विदाउट इवन गिविंग यू द क्रेडिट मतलब ऐसे कॉपीराइट तरुण चावला लिखा रहता है बट आई डोंट थिंक सो दैट इट इज इनफ to give you the credit. So how you came to photography? मतलब कि ये photography you came in the you joined college and उसके बाद इस चीज को start किया या स्कूल से ही करते थे क्या क्या how you came to photography? स्कूल से करता था मैं. पहले वो छोटा सा फ़ोन होता था हाथ में, जिससे हम्म, एकदम टट्टी कैमरा होता था. 1 मेगापिक्सल भी नहीं होता था उस टाइम पे. हाँ बिल्कुल दिन वीजी वाले भर, कैमरास. हाँ, हाँ दिन भर एक हाँ स्कूल में घूमता था, हर एक की फ़ोटो खींचता रहता था. एंड उस टाइम हाँ कहते हैं नेचुरल फ़ोटो खींचे, मतलब बिना बताए या कैंडिड जो बाद में बन के आ गया आगे. हाँ. कॉलेज में आया तो थोड़ा अच्छा कैमरा खरीदने को मिल गया मेरे को. हम्म, फिर धीरे-धीरे कैमरे अच्छे होते गए एंड थोड़ा डेवलप होता गई फ़ोटोग्राफ़ी. हम्म, कॉलेज में काफ़ी इवेंट शूट किए मैंने, मतलब हर यूथ हम्म, फेस्टिवल, हर ट्रिप, हर जो हम्म, मीट्स होती थी. वो एक तरह के मेरे टेस्ट हम्म, सब्जेक्ट से यहाँ प्रैक्टिस हो गई मेरी 4 साल. एक हम्म, इवेंट को शूट हम्म, कैसे करते हैं.
एंड जब मैं कॉलेज से निकला तो जब वेडिंग्स मुझे दिखी तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं शूट कर सकूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं थोड़ा शाई था एंड थोड़ा इंट्रोवर्ट था। तो मुझे ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे लोग मुझे मना ना करें फ़ोटो शूट करने के लिए। आप कहीं भी जाओ तो वो लोग बोलना पड़ेगा, हाँ स्माइल करो या फ़ोटो खींच सकता हूँ क्या मैं आपकी? क्योंकि वेडिंग में ऐसा नहीं है, वहाँ पे हर लोग फ़ोटो खिंचवाने ही आता है। तो एक बहुत अच्छा मिक्सचर मिला मेरे को एक्सेप्टेंस का। जैसे कॉलेज में गर्ल्स की फ़ोटो खींच रहे होगे आप, तो फिर कॉन्शियस में रहते हैं लोग, ये फ़ोटो खींच रहा है या कहीं लग जाएगी या कहीं डाल देगा ऑनलाइन या बाकी को दे देगा फ़ोटो। लेकिन वेडिंग में ऐसा था ओके। लोग चाहते हैं फ़ोटो खींचे, वो चाहते हैं ऑनलाइन डाले फ़ोटो उनकी। तो एक अच्छा मिक्सचर मिला मुझे एक्सेप्टेंस का भी एंड क्रिएटिविटी दिखाने का भी अपनी। इसलिए इवेंचुअली मैं वेडिंग फ़ोटोग्राफी में गया। आई थिंक स्टार्टिंग से पैशन था फ़ोटोग्राफी का। कैमरा कोई भी हो मेरे पास, फ़ोन हो, नॉर्मल डिजिटल कैमरे हो, कुछ ना कुछ किया है मैंने। जो वो नहीं भी होता तो मैं वेबकैम यूज़ कर रहा था लैपटॉप का अपना कुछ बनाने के लिए या शूट करने के लिए। अपने जो हमारा वेलकम पार्टी थी हमारे कॉलेज मतलब हमारे बैच की फ्रेशर्स, हाँ वो मैंने अपने फ्रेशर्स। लैपटॉप के वेबकैम से रिकॉर्ड की थी। ओह कि उस टाइम पे वाह। पास इतना डिसेंट कैमरा नहीं था कि मैं प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लैपटॉप कैमरा रिकॉर्ड की हुई मैंने। एंड उस टाइम फुल एचडी बहुत दैट्स बड़ी बात रियली होती एन थी। अमेजिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही, बिल्कुल। वो तो सारी चीजें हमने देखी हैं, वो तो होती है। एंड मतलब कि अच्छा एक चीज बताओ कि जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे प्रोफेशनल या कॉर्पोरेट की फोटोग्राफी है, वेडिंग है, या जैसे वेबसाइट्स का काम करते हैं, या कभी कभार बिकॉज यू हैव बीन आल्सो एक्सटेंसिवली ट्रैवलिंग, आई रिमेंबर यू वेंट टू यूएस आल्सो फॉर सम काइंड ऑफ शूटिंग, मेरे ख्याल से, और भी ऑल ओवर इंडिया यू शूट एंड आल्सो यू गो अब्रॉड। तो ये जैसे जो असाइनमेंट्स मिलते हैं और ये जो चीजें करते हैं, तो मतलब किस किस तरीके की चैलेंजेस फेस करते हैं, या क्या डिफरेंस होता है ऐसे कॉर्पोरेट्स में, वेडिंग में, या अदर काइंड ऑफ थिंग्स में? पहले कॉर्पोरेट और वेडिंग की बात करता हूँ। अ, ठीक है। या मेनली फैशन की बात करता हूँ। फैशन और वेडिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है, वेडिंग में क्या है, आप हम्म। एक शादी हो रही है, आप उसको कैप्चर करने के लिए जा रहे हो। इनकेस आपको कोई हम्म। मिस आउट हो गया, लेट्स से आपने किसी की फोटो नहीं खींची, फिर भी शादी हो जाएगी बंदे की, शादी खराब नहीं होगी उसकी। लेकिन एक फैशन हम्म। शूट में क्या, सब कुछ आपको क्रिएट करना है। अगर वो फैशन शूट ओके। सही नहीं होता तो सब कुछ खत्म हो गया, फिर पूरा शूट वो आपके लिए हाँ। है। तो बहुत प्रेशर होता है उसके अंदर, उसके लिए लाइक प्लानिंग बहुत। बहुत करनी पड़ती है कि एक्चुअली शूट कैसे करना है, टीम कैसी होगी, मेकअप कैसा करना है, हम्म। लोकेशन कैसी है, पुलिस वाले पैसे कितने खिलाने हैं परमिशन के लिए। मतलब ओके, हाँ, टेक्निकल थिंग्स। मेरे पास बिल्स आए हैं मतलब अपने प्रोड्यूसर के कि ये 30,000 रुपये किसके लगाए हैं, ये परमिशन के हैं सर, सब पर्ची तो नहीं है इसकी। हम्म। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है इसके अंदर। आई एंड कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैनेजरियल स्किल्स। एंड फोटोग्राफी इज लाइक 10% ऑफ शूटिंग वर्क। बाकी 90% इज लाइक हाउ यू प्रेजेंट योर वर्क, हाउ यू सेल योर वर्क, हाउ यू डील विद द क्लाइंट्स, और हाउ यू लाइक जस्टिफाई योर वर्क। अब एक फोटो में आधी काली फोटो आधी सफेद फोटो है, कई लोग समझ नहीं आती कि आधी काली क्यों है ये, या एक ही आंख क्यों दिख रही है फोटो में ब्राइट की, दूसरी आंख कहाँ है ब्राइट की। तो वो अपने विजन को आगे ट्रांसफर करना भी चैलेंज होता है फोटोग्राफी के अंदर। आप फिर एक कैप्शन से करते हो, लोगों को दिखा के करते हो, एक एल्बम में लगा के एक सीक्वेंस बना के करते हो, ये सब एक प्रोसेस है इसका। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक फोटोग्राफर बने हुए हैं ना, आप साल भर फोटोज क्लिक कर रहे हो। तो एक बहुत छोटा पार्ट है फोटोज क्लिक करना। In fact, I was एंड coming to this question. Maybe I will like to interrupt हाँ, you over here. I will carry on with the first question a little bit later. एक चीज बताओ, फोटोग्राफी में हाउ मच इज क्लिकिंग एंड हाउ मच इज एडिटिंग एंड हाउ मच इज प्रेजेंटिंग? clicking is I think in weddings clicking is 99% of the work. अच्छा। ओके। अगर आपने मूवमेंट मिस करी तो वापस कभी नहीं आ सकती हो, उसको भूल जाओ। एडिटिंग में आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। तो जो टेक्निकल पार्ट है सिर्फ क्लिकिंग के अंदर आता है वो। इवन जो क्रिएटिविटी पार्ट है क्लिकिंग में आता है। आप एडिटिंग में बहुत कम अच्छा। पार्ट प्ले कर सकते हो उसके अंदर। ओके। सेकंड आता है फैशन या बाकी चीज़ों के अंदर। उसके अंदर एडिटिंग इज लाइक आई थिंक 20%, एंड बाकी 80% इज शूटिंग पार्ट। एंड हम लोग वीडियोस भी करते हैं, वीडियोस में इट्स 50-50। हाफ ओके। इज लाइक द शूटिंग पार्ट, हाफ इज द एडिटिंग पार्ट। मुझे तो लगता है एडिटिंग ज्यादा है, क्योंकि वीडियो में एडिटिंग के बहुत है। कारण चीजों का लेवल, है ना, हाँ, वीडियो का लेवल जो है काफी एनहेंस हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ एडिटिंग।
और अगर एडिटिंग नहीं है प्रॉपर तो फिर जो है मतलब वीडियो में काफी कुछ अच्छे से छुपा अच्छा सकते वीडियो भी वीडियो में जो काफी कुछ छुपा सकते हैं एडिटिंग के अंदर, जो फोटोज में नहीं छुपा सकते। हाँ ओके, मतलब ये मतलब बड़ी बड़ी क्लासी चीजें हैं, बड़ी टेक्निकल चीजें। अच्छा तो आई कम हमारे बैक टू योर फर्स्ट यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन एक हाँ बार, क्योंकि मुझे आंसर करना है, लोगों को हाँ बताना है कि ओके, तो इंडिया में हम शूट हाँ। करते हैं हम लोग, टिपिकल बताओ हमारी टीम का कैसे हम्म, होता है। लेट्स से 200 लोगों की हम्म, वेडिंग है, तो मेरी टीम से हम्म, 3 फोटोग्राफर 3 वीडियोग्राफर जाते हैं 200 लोगों के लिए। ठीक है, साथ में एक असिस्टेंट्स हम्म, होते हैं उनके बैग पकड़ने के लिए, पानी लेके आने के लिए, लाइट पकड़ने के लिए। हम्म, ठीक है, हम्म, तो मैं अपना बैग कभी खुद नहीं उठाता, टीम मतलब लड़के उठाते हैं बेसिकली, लेकिन लाइट मैन उठाते हैं। हम्म, जब बाहर जाओ हम्म, तो फिर दिखता है कि औकात क्या है। खुद ही वो हम्म, 10 किलो बैग पीठ पे टांग के एयरपोर्ट पे घूमो जाके, कोई बैग लेके फिर वेन्यू पे जाओ, कोई हेल्पर नहीं, हाँ कोई असिस्टेंट नहीं वहाँ पे। 500 लोग की गैदरिंग हाँ में आपको 2 फोटोग्राफर मिलते हैं मुश्किल से। हाँ हाँ मतलब हाँ लग्जरी बहुत कम हो जाती है यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं मिलता लग्जरी के नाम पे। हाँ, वहाँ पे हमेशा जो है वो वर्क फोर्स थोड़ा सा कम रहता है लेकिन काम मैन ज्यादा पावर कम होता होती है। है। मैन पावर कम होता है। एक चीज मैंने और देखी है कि अगर विदेशों की वेडिंग है और हमारे देश की वेडिंग है, तो विदेशों में यू गेट द नेचुरल लाइट, क्योंकि वो दिन में वेडिंग्स होती हैं, तो फिर आपको अगर मतलब इफ यू आर नॉट शूटिंग एन इंडियन मैरिज एज सच बट रादर देन गोइंग फॉर अ फॉरेन मैरिज, तो वो दिन में शादी करते हैं तो काफी अच्छी लाइटिंग हो जाती है और आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम ना, क्योंकि एक तो जो इन्होंने लाइट्स करके रखे हैं, उसके बाद यू ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेक दैट थिंग बेटर। इंडिया में वो सा इशू बनता होगा शायद, आई डोंट नहीं, इशू ये नहीं है, इशू एस्थेटिक्स का आता है। नो। इंडिया अच्छा। में कहीं भी खंभा खड़ा कर देते हैं, लाइट डालनी है उनको तो, एंड खंभे पे कुछ भी लगा देते हाँ। हैं। यू नेवर नो कि एक ओके। स्टेज पे कैसी टेबल डाल देंगे अजीब सी बीच के बीच में, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो एस्थेटिक्स में थोड़े इश्यूज आते हैं इंडिया के अंदर। दूसरी चीज़ है, यहाँ हम्म, डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो बाहर लिटरली जब हाँ आप वो एक तो है। फोटो खींचते हो तो क्लैरिटी बढ़ जाती है फोटो की, कि बीच में मिट्टी नहीं होती है हम्म। आपकी। एंड लाइटिंग का इतना गेम नहीं है, आई थिंक लाइटिंग उल्टा कम हो तो कंट्रोल करना आसान होता है उसे। जैसे मैं बाहर अच्छा, एक फोटो क्लिक ये करता हूँ पता कोई, नहीं। तो मैं सन को ओवर कभी नहीं कर सकता अपनी लाइटों के साथ। मतलब कैनवस की ओके। बात है, कैनवस में बहुत कुछ बना हुआ है पहले से, तो उसको आप चेंज बहुत मुश्किल से कर पाओगे। लेकिन आपको अगर ब्लैंक कैनवस दे दे, मतलब काले रंग का रूम दे दे, तो उसमें कुछ भी क्रिएट कर सकते हो आप, जो फैशन बेसिकली करते हैं। ओके। हाँ वेडिंग भी ये सेम चीजें होता तो है। हैं, ये चीजें। हम्म। अच्छा ये बताओ कि जैसे हमारे बहुत सारे आजकल स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं वो मतलब बहुत पैशनेट है फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, और काफी कुछ करते भी रहते हैं। एंड एडवांटेज भी है, एट योर टाइम्स द कैमरास एंड ऑल दीज थिंग्स वर नॉट गुड। नाउअडेज तो आप अपने फोन से भी बहुत अच्छे कैमरास मिल जाते हैं। यू वर कैरिंग अ कैमरा कंप्लीटली इन योर बैग, था एक कैमरा या हुआ करता था। आजकल सिर्फ जेब में एक मोबाइल है, आपके पास एक अच्छा सा आईफोन है या कोई भी अच्छा सा मोबाइल है, तो उससे आपको बहुत सारा एडवांटेज। पीपल आर टेकिंग अप एंड दे एंजॉय। और ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, द पॉपुलैरिटी ऑफ इंस्टाग्राम इज आल्सो बिकॉज ऑफ दैट। तो ये जो नए बच्चे हैं, अगर सपोज कोई सीरियसली फोटोग्राफी सीख करना चाहता है या परस्यू करना चाहता है, तो व्हाट विल बी योर सजेशन टू देम? क्या क्या चीजें करनी चाहिए इनिशियली? फोटोग्राफ में 2 पार्ट होते हैं, एक है आपका आर्ट, एक है आपका क्राफ्ट। आर्ट है आपका जो आपको दिखता है, एंड क्राफ्ट है आप उसे कैसे सेव करते हैं, कैप्चर करते हो। क्राफ्ट थोड़ा आसान हो गया फ़ोन के आने से, आप कहीं भी कुछ भी शूट कर सकते हो एंड क्वालिटी अच्छी आएगी। आप अंधेरे में शूट करो तो फोटो तब भी आ जाएगी। नहीं होता, आपका आर्ट नहीं है, आप उसको बता नहीं पाओगे शूट क्या करना है। मतलब एक पहाड़ की फोटो खींच लो, उससे सीनरी नहीं बनती है। आपको कुछ आगे चाहिए, कुछ पीछे चाहिए, आपको देखना है मौसम कैसा होना चाहिए उस टाइम पे। आपको बारिश में निकलना पड़ेगा छाता लेके, मतलब कुछ टाइम पे शूट करने के लिए। किसी नए बंदे को परस्यू करना है, आई सजेस्ट कैमरा कोई भी ले लो, बाय अ बेसिक डीएसएलआर। जैसे कैनन के 20,000 रुपये की रेंज में अच्छे डीएसएलआर आ जाते हैं अभी, उसमें फुल मैनुअल कंट्रोल ओके। होता है, अच्छी फोटो क्लिक करते हैं, वीडियो बना सकते हैं। वो खरीद लो, उस पर यूज़ करना स्टार्ट करो, जितना हो सके मैनुअल मोड यूज़ करो। ओके। एक लेट्स से एक नॉर्मल वन प्लस का फ़ोन या आईफोन आपको 40 से 50 हज़ार रुपये का आता है। उसके बदले बाय नॉर्मल 10,000 का फ़ोन या
अंदर जाकर फोन है, 20,000 रुपये कैमरे पे खर्च करो अलग से। ओके। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक अच्छा फोन वाला कैमरा यूज लो, आप एक कैमरा अलग लो, फोन अलग लो, क्योंकि जो आपको कंट्रोल एक कैमरा दे सकते हैं वो फोन में कभी नहीं मिलेगा आपको। ट्रू, वेरी ट्रू। एंड जब आप कैसे कहूँ, जैसे कोई कैमरा में आप ग्रो कर सकते हो, जैसे मेरे पास एक कैमरा था, मैंने एक लेंस लिया, फिर दूसरा लेंस लिया, फिर तीसरा लेंस लिया, फिर लगा कि मुझे फ्लैश भी चाहिए। अब फ्लैश लगाऊंगा तो स्टैंड भी चाहिए मुझे उसके लिए, और फ्लैश का कुछ लगाने के लिए वो छाता चाहिए मुझे, जैसे या सॉफ्ट बॉक्स चाहिए। तो उसमें ग्रो कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। आपको देखिए, हाँ मैं बॉटल नेक में आ गया हूँ, मुझे अगला क्या चाहिए इसके बाद है। ओके। आईफोन में क्या है, आईफोन में आप या कुछ कोई भी अच्छे फोन में आप टॉप कैम फोन के अंदर आप एक आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे आप एक नया फिल्टर लगा लोगे एक फोटो में अपनी, मतलब बहुत लिमिटेशन आ जाती है आपके अंदर। आपको समझ नहीं आया कि अपर्चर क्या होता है, शटर स्पीड क्या होती है, कि मैं लेंस क्यों बदलूं, या लेंस इतना बड़ा क्यों होता है आगे से। तो मैंने आपको एक थोड़ा सीखना पड़ेगा क्राफ्ट, ताकि जैसे वेडिंग्स में क्या होता है, एक्चुअल बताता हूँ, सभी को दिख जाती है मोमेंट्स, सभी को दिख जाता है कि हाँ ब्राइड होने वाली है, उसके आंसू आएंगे। जैसे भी दिखता है कि बाप बेटी को हक करेगा विदाई के वक्त, वो आपकी आर्ट है। पर क्राफ्ट क्या होता है, फोटो खींचोगे आपकी फोटो उस टाइम परफेक्ट आ जाए कि पहले शॉट में फोटो निकल जाए आपकी, तो सही शॉट मिलेगा नहीं आपको उस पर, तो आपकी क्राफ्ट है। इसलिए गाड़ी चलाते हो आप, आफ्टर वाइल आपका जो गियर लगाने का सिस्टम होता है वो इंस्टेंटली हो जाता है, मतलब मसल मेमोरी बन जाती है आपकी, अब एक क्राफ्ट होती है। फोटोग्राफी में सेम है, आपको कैमरा ऑपरेट करना सीखना पड़ेगा, एंड इतना सीखना पड़ेगा कि आप फटाफट कैमरा ऐसे निकालते हैं कट एंड क्लिक करके फोटो खींच सकते हैं, तो बिना सोचे हुए कि हमने सेटिंग क्या रखनी है या फिर फोटो कैसे आएगी। तो इसलिए गैस वगैरह एलिमिनेट करना है आपको, एंड अपने क्राफ्ट को परफेक्ट करना है, तभी आप आर्ट को दिखा पाओगे आगे। एंड ये कोई सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई डिजी कैमरा हो, आपका नॉर्मल कैमरा हो, फोन कैमरा हो, आपको पता होना चाहिए आपको एक्जैक्टली फिल्टर क्या चाहिए, कौन सी ऐप चाहिए आपको। आपको वीडियो बनाना तो कौन सी क्वालिटी वीडियो बनाना है, फोन से भी 4K चाहिए, 120 में चाहिए आपको, यह सीखना पड़ेगा आपको। एंड एक मेन चीज़ है, जो मैनुअल साथ में आता है, किताब आती है साथ में, उसको पढ़ना चाहिए आपको एंड टू एंड। हाँ, दिस इज कोई द भी थिंग, कैमरा हो, मतलब कुछ कि भी जो हो, हम डब्बा खोलने के बाद उसको सबसे पहले फेंकते हैं वो नहीं करना है। मतलब एक कंपनी की वेरी कोई ट्रू। टीम लगती है, कोई प्रोडक्ट टीम लगती है कंपनी की, है कॉपीराइटर लगते हैं उसके अंदर, वो हर चीज़ को परफेक्टली लिखते हैं वहाँ पे आपके लिए, उसको पढ़ना चाहिए। This is very true, very true. Very important, I will say, suggestion for all our एंड फ्री में, newbies, I will say. एंड फ्री में मतलब साथ में आती है, तो वो खरीदनी भी नहीं पड़ेगी अलग से। Okay, सही बात है। बट मैं एक चीज थोड़ा सा इंक्विजिटिव हो रहा था, दैट यू हैव योर ओन वेबसाइट नाउ। डू यू आल्सो होस्ट अ यूट्यूब चैनल फॉर सम काइंड ऑफ थिंग्स? नहीं, आई डोंट हैव अ यूट्यूब चैनल, मेरी वेबसाइट भी नहीं है अभी। वेबसाइट नहीं है, ये जो पिक्सिंग है ये खुद की वेबसाइट नहीं है? ये डोमेन नेम है बेसिकली, तो अच्छा, वेबसाइट ये में क्रिएट डोमेन नहीं नेम। किया, क्योंकि अच्छा, मोस्टली अच्छा, वर्क अच्छा। हमें सोशल मीडिया से आता है, तो हम इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को प्रमोट करते हैं। अच्छा, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हैं और अभी वेबसाइट नहीं खोला है। तो मैं मतलब आई डू नॉट नो, मतलब कि हाउ प्रोफेशनली इट विल बी दिस एंड दैट, बट आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट कि यू शुड स्टार्ट विथ अ यूट्यूब चैनल या अ वेबसाइट जिसमें कि कुछ बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी के बारे में कुछ अगर फ्री ट्यूटोरियल्स भी हो मतलब ऑब्वियसली एक पूरा कोर्स तो कर ही सकते हैं प्रोफेशनली, बट कुछ फ्री ट्यूटोरियल्स भी हो सो दैट लोग थोड़ा सा और इंटरेस्टेड हो और समथिंग दे कैन गो फॉर बेटर फोटोग्राफी मैं आपको और लिंक, वीडियोग्राफी। सी आई एम नॉट अ गुड टीचर, मतलब अच्छा, स्किल्स है बट मैं हर बंदा पढ़ा नहीं सकता। अच्छा। जैसे जो लोग आईएएस को पढ़ाते हैं वो खुद आईएएस नहीं निकाल पाते, बट बाकी को निकलवा देते हैं, तो दे हाँ, आर गुड हाँ, टीचर, हाँ, बट उनकी अपनी स्किल नहीं होती कई बार। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं जो काफ़ी अच्छा बोलते हैं, काफ़ी अच्छे समझाते हैं। आई थिंक हम्म, उनकी हम्म, वीडियोस आपको स्टडी करनी चाहिए। एंड अच्छा, मुझे तो तो मतलब यू कैन सजेस्ट सम हाँ, थिंग्स। हाँ, ओके, ओके, दैट विल बी इवन बेटर। हाँ, ऐसे भी मुझे ये चीज पता है दैट यू आर अ वेरी गुड परफॉर्मर, है ना? You may not like to take up teaching, that is the thing, because I am pretty sure that if you start teaching also, you can do it far better. But ठीक है, सबका अलग अलग तरीके का ओरिएंटेशन होता है, कुछ चीजें हमारे लिए भी छोड़ दो, है ना? Those who cannot perform can always become a teacher, दोनों भी करते हैं, ऐसा नहीं है। right? हाँ, दोनों भी करते हैं ऑब्वियसली, ट्रुथ है, ट्रुथ है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बता, who is your favorite teacher in your department?
इन श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। मैं कुछ खराब नहीं पूछूंगा, सिर्फ अच्छी चीजें पूछूंगा, नथिंग टू क्रिटिसाइज। सभी अच्छे थे मतलब, फेवरेट बट टीचर? if I had to pick one, मेरे डिपार्टमेंट नहीं, Ajay Kaul sir from our department, computer science, and overall I have to pick someone, it will be Sunil Vanshu sir. सुनील पांचू सर, ओके ओके हाँ, ओके, उनका वो फाइन। कोट है ना, डोंट बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। हाँ, ये पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, हाँ, ये उसका लाइक काफी कोट वो किसी हो कहते गया, थे उस बट पॉइंट ऑफ व्यू। वो काफी बोलते हैं, बट कोट किसी हो गया एक्चुअल में, बट इट्स अ गुड कोट। मैंने उनसे सुना था, मुझे लगता है उनका कोट ही है हमेशा। हाँ, अच्छा, फेवरेट मोमेंट एट एसएमवीडी? थिंक इट वाज एडवेंचर कैंप, ये गया था हमारे सेकेंड ईयर में। अच्छा, इवन नथर डॉट करके जगह है, वहाँ पे गए थे हम लोग, एंड हाँ, 4 नथा दिन का टॉप कैंप है। था। आई थिंक दैट वाज ओनली पिकनिक वी एवर हैड इन द कॉलेज, एंड उसमें ओके काफी अच्छा बॉन्डिंग एक्सपीरियंस हुआ था, सब बैचमेट्स के साथ भी, सीनियर्स के साथ भी, जूनियर्स के साथ भी। ओके, दैट्स दैट वाज नाइस। द बेस्ट थिंग इन द कॉलेज। ओके, बेस्ट थिंग अबाउट एसएमवीडी व्हिच यू रिमेंबर? आई थिंक कैंपस वाज रियली ब्यूटीफुल, इट काफी इज अच्छा था स्टिल दिन। वेरी ब्यूटीफुल। डिबेटेबल टॉपिक, बट ओके, आई नो काफी फेंसिंग हो गई है, काफी जगह बंद हो गई है। अरे हाँ, वो विल्डरनेस चले गई है कॉलेज की, हाँ, वो बात तो है, वो बात तो है। अब ज्यादा वो ऑर्गेनाइज उस हो गया तरीके, पहले से। हाँ, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया, वो तो होता ही है, सेटअप्स धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, मोर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाते हैं, पहले ज्यादा फ्रीडम होता है, फिर थोड़ा सा फ्रीडम कर्टेल होता है, तो वो सारी चीजें होती है। अच्छा, मोस्ट चैलेंजिंग थिंग विच यू एवर फेस ड्यूरिंग अ वेडिंग फोटोग्राफी, कोई इंस्टेंस? सो मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इज हैविंग टू मनी फोटोग्राफर्स। तो अभी तो इतना नहीं होता, बट पहले क्या होता था कि लड़की ने अपना फोटोग्राफर बुक कर लिया, लड़के ने अपना बुक कर लिया फोटोग्राफर। लड़की के मामा जी के कोई जान पहचान स्टूडियो है, तो वो एक और बुक कर दिया, एंड हम तो अलग से आएंगे फिर, तो जगह नहीं मिलती कि शूट कर पाए हम लोग। एंड जगह मिल भी जाती है, बहुत गिल्टी फील होता है कि नीचे स्टेज के जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें कोई देख नहीं पाता कि फोटोग्राफर स्टेज भर देते हैं, तो उस गिल्ट से डील करना, अपना काम करने में बहुत डिफिकल्टी होती है हमें। या, आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने भी देखा है कुछ कुछ जगहों पे इतने सारे फोटोग्राफर्स होते हैं और वही दो लोग होते हैं जिनकी फोटो खींचनी होती है, तो कैसे खींचते होंगे वो, मैं सारे फोटोग्राफर्स को जो है कितनी प्रॉब्लम होती है। पता नहीं क्यों, एंड दिक्कत है कि हम उनको मना भी नहीं कर सकते, मतलब जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हाँ। लिखा होता है कि हम हम्म एक्सक्लूसिव फोटोग्राफर एंड सो, तो हम हम्म एनफोर्स कर सकते हैं उसे, हम दूसरे फोटोग्राफर भेज सकते हैं वहाँ से बनने से। हम्म लेकिन हमें हम्म, लगता है वो भी अपना काम करने आए हैं, उनको किसी ने भेजा हाँ। हुआ है वहाँ पे, हम्म तो बहुत डिफिकल्ट टाइम आ जाता है कि हम क्या करें वहाँ पे। हम्म, एंड ये एक और चीज है। ये है, एंड एक और डिफिकल्टी हमेशा आती है हमें, तो दो तरह की वेडिंग्स होती हैं, एक आप हम्म शूट करते हो अपने लिए, एक शूट हम्म करते हो क्लाइंट के लिए। हम्म जैसे कि एक ट्वेलिंग शॉट होता है, ब्राइड घूमती है, हम्म एंड बहुत अच्छा लगता है, देखने में अच्छे आते हैं, हम्म लेकिन क्रिएटिवली वो अच्छा शॉट नहीं है मेरे लिए, पहले मैं शूट कर चुका हूँ। हम्म तो मैं ऐसी चीज़ शूट करूँ जो मेरे पोर्टफोलियो में जाए, या ऐसी शूट करूँ जो ब्राइड के लिए अच्छी हो। हम्म मतलब बेसिकली क्लीशे शॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं, हर ब्राइड को मैं उनको अपनी शक्ल देखती है बेसिकली, लेकिन मेरे लिए वो अच्छे नहीं होते। ओके। तो डिसाइड करना कि मैं क्या शूट कर वेडिंग में, वो डिफिकल्ट हो जाता है हम्म कि मैं क्रिएटिविटी में जाऊँ। जैसे एक क्रिकेट का मैच होता है, आप हम्म हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हो, हम्म आप सचिन हो कोई भी हो, हमेशा आपको स्टार्टिंग से खेलना पड़ेगा अपनी इनिंग्स को। हम्म तो सेम है फोटोग्राफी में, पहले फैमिली पिक्चर शूट करते हैं, हम गेटिंग रेडी शूट करते हैं, हम जयमाला शूट करेंगे, मंडप शूट करेंगे, वो सब करने के हम्म बाद हमें कुछ थोड़ा सा मौका मिलता है 10 मिनट का, जब अपने क्रिएटिव हम्म शॉट निकाल सकते हैं। एंड वो चैलेंजिंग पार्ट है हमारे लिए, वो 10 मिनट ढूंढना या वो क्रिएटिव शॉट हम्म ढूंढना। हम्म तो जितने अच्छे फोटोग्राफर होते हैं वर्ल्ड के, इनके पोर्टफोलियो होता है, तो हर हम्म वेडिंग से वो 2 या 3 फोटो निकाल पाते हैं अच्छे, तब पोर्टफोलियो बनता है उनका लॉन्ग टर्म में जाके, हम्म एंड उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है हमें। तो ऑन एन एवरेज एक वेडिंग में कितनी फोटोज खींचते होगे, मतलब थोड़ा सा अगर एक आइडिया पता कर लूं। कई चीज़ पे डिपेंड करता है, जब वेडिंग हम थोड़े पागल हो जाते हैं, तो मैं अकेले एक दिन में 10,000 फोटो शूट कर लेता हूँ। 10,000?